Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone. So in this video I am going to start exercise 1.2 from the book of ML Agarwal. So here the first problem, in the following state whether A equal to B or not. Okay, so here the first one. In first one here A equal to, in first one here A equal to x such that x plus 2 equal to 3 and set B equal to x such that x belongs to n and is less than 2. Now here x plus 2 equal to 3, इसका मतलब x के साथ 2 ऐड करने पे 3 आएगा. ओके तो इसके साथ 2 ऐड करने पे सिर्फ 1. Okay, if you add 1 with 2 then you will get 3, and as here b equal to x such that which is less than 2. Now less than 2 means also 1, so that means here the element, the value of x equal to 1, and here also the value of x equal to 1. That's why a equal to b. So for the first one the answer will be yes. Now the second one, x such that x belongs to n and 3x minus 1 less than 2, and here b such that x belongs to w, that means whole number, and 3x minus 1 less than 2. So in that case first one 3x minus 1 less than 2, okay, that equal to x minus 1, sorry, x less than 1, x less than 1. Now for the first one, as x belongs to a natural number, so that means here the element of a equal to 0, so it's a null set. But in the second one here the set x belongs to whole number, so here the only one element that equal to 0, so the set equal to only one element that contains 0, so that means a is a null set but b has a element 1, so that's why here a not equal to b. That means answer no. Now third one, in third one x such that x belongs to n is a prime factor of 36. 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है. सो 36 का प्राइम फैक्टर होता है 2 and 3. So A is a set जिसका दो एलिमेंट है 2 and 3. Now second set B, which is given the elements are 2 1 2 3 4 6 9 2. A पे यहाँ पर दो एलिमेंट है, B के पास 1 2 3 4 6 है. इसका मतलब सेट B is not equal to set A, so A not equal to B. Sum number 4, x belongs to I, that means integer, and x square less than equal to 4. So x square minus 4 less than equal to 0. Now यहाँ पर a square माइनस b square का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. So x minus 2 plus x plus 2. ओके, a plus b, a minus b, जो a square minus b square का फॉर्मूला होता है, लेस देन इक्वल टू 0. सो हियर माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2. देखिए एक्स का वैल्यू जो माइनस 2 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 2. सो यहाँ पर एलिमेंट होगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. यहाँ पर इक्वल टू है, दैट्स वाई 2. अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन 2 था, सो यहाँ पर 1 पर खत्म हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा. एज योर इक्वल टू, दैट्स वाई 2 इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इन बी x such that x belongs to R and here x square minus 3x plus 2 equal to 0. So here you have to do the middle term factor करके यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है. So x square minus 2x minus x plus 2 equal to 0, then x minus 2 x minus 1 equal to 0. इसका मतलब x का एक वैल्यू होगा 2 and दूसरा वैल्यू होगा 1. So b जिसका दो एलिमेंट है 1 and 2. अब ए का एलिमेंट है माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, बट बी का एलिमेंट है सिर्फ 1 और 2. दैट्स वाई ए नॉट इक्वल टू बी. नाउ सम नंबर 5. इन सम नंबर 5 ए इक्वल टू 2 3. ए का दो ही एलिमेंट है 2 and 3, एंड बी x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6. इसका मतलब x square plus 5x plus 6 का पहले तुम्हें सोल्यूशन निकालना है. सोल्यूशन मतलब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके x का वैल्यू निकालना है. सो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा -3 एंड -2. सो एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू -3 -2. एलिमेंट ऑफ a क्या था 2 and 3, सो a नॉट इक्वल टू b. नाउ नंबर 6, x such that x is a letter in the word loyal. Okay. Now letter of loyal ALOY, and B y such that y is the letter of the word alloy. Now alloy में जो लेटर होता है ALOY, इसका मतलब A and B दोनों में सेम लेटर है, दैट मीन्स सेम एलिमेंट से, दैट्स वाई A इक्वल टू B. नंबर 7,
इन नंबर 7 एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड उल्फ. सो यहाँ पर FLOW ये चारों वर्ड है, सॉरी चारों लेटर है इन द वर्ड उल्फ. एंड ऑल्सो B इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो. ना फॉलो में भी चारों लेटर है FLOW. ओके, फॉलो का स्पेलिंग होता है FOLLOW. मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कोई लेटर रिपीट नहीं होगा. अगर वहाँ पर 2 L है तो तुम्हें सिर्फ एक ही L लिखना होगा. अगर वहाँ पर 2 O है तो तुम्हें सिर्फ एक ही O लिखना होगा. सेट में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है. सो A का एलिमेंट है FLOW, B का भी एलिमेंट है FLOW. इसका मतलब सेट A इक्वल टू सेट B. नाउ सम नंबर 8, द लास्ट वन. इन सम नंबर 8 A इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 dot 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 and B equal to x is a multiple of 10. Okay, now x is a multiple. अब मल्टीपल पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में होता है. x इंटू 1 प्लस 10, x इंटू -1 माइनस 10. इसका मतलब पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी मल्टीपल होगा, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी मल्टीपल होगा. बट a का यहाँ पर सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे है, हर एक वैल्यू पॉजिटिव में है. सो a नॉट इक्वल टू b. Now sum number 2. If A equal to 1, 2, 3, 4, 5, B equal to 2, 3, 4 and C equal to 2, 4, 5. Okay? A का 5 एलिमेंट है, B का 3 एलिमेंट, C का भी 3. बट B का 2, 3 and 4 and C का 2, 4 and 5. So here state whether the following statements are true or false. First one, A subset of B. ओके, ए सबसेट ऑफ बी. सबसेट का मतलब होता है जिसमें ए का हर एक एलिमेंट बी में रहना ज़रूरी है. ए का हर एक एलिमेंट बी में रहना ज़रूरी है. अब ए का कितना एलिमेंट है यहाँ पर? 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5. और बी के पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, बाकी 2 एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी. सो दैट्स वाई यह फॉल्स. नेक्स्ट वन, ए सबसेट ऑफ सी, ऑल्सो फॉल्स. थर्ड वन, बी सबसेट ऑफ ए. अब B का 3 एलिमेंट है, 2, 3, 4. A का भी 5 एलिमेंट है. अब यहाँ पर देखो 2, 3, 4. B का तीनों एलिमेंट A में है. ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर लाई ऑन द एलिमेंट्स ऑफ A. दैट मीन इन द सेट A. सो दैट्स वाई B सबसेट ऑफ A. सो इट्स ट्रू. नेक्स्ट वन, B सबसेट ऑफ C. 2, 3, 4 एंड यहाँ पर 2, 4, 5. इसका मतलब 5 मिसिंग है. सो दैट्स वाई फॉल्स. नेक्स्ट वन, 5, C सबसेट ऑफ A. एलिमेंट ऑफ सी 2, 4, 5. एलिमेंट ऑफ यहाँ पर 2, 4, 5 है, तीनों एलिमेंट ही यहाँ पर है. सो दैट्स वाई सी सबसेट ऑफ ए इट्स ट्रू. नेक्स्ट, सी सबसेट ऑफ बी. अगेन 5 इज मिसिंग, सो फॉल्स. बी इक्वल टू सी. अब बी का एलिमेंट है 2, 3, 4. सी का एलिमेंट है 2, 4, 5. ओके, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है. सो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है. सो नॉट इक्वल टू, दैट्स वाई फॉल्स. नाउ यहाँ पर 5 सबसेट ऑफ बी. 5 means null set. Null set subset of B. It's true. ओके, इसका मतलब हर एक सबसेट का, हर एक सेट का एक ही सबसेट होता है, वो है नल सेट. नल सेट को हम हर एक सेट का सबसेट बोल सकते हैं. कोई भी सेट का सबसेट होता है नल सेट. जैसे ए का भी सबसेट नल सेट होगा, बी का भी सबसेट नल सेट होगा एंड सी का भी सबसेट नल सेट होगा. सो नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. So that equal to true. Next, A this one B. इसका मतलब होता है number of elements from A and number of elements from B दोनों equal होगा. अब यहाँ पर number of elements कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 एलिमेंट है. B का number of elements कितना होगा? 1, 1, 2, 3, 3 होगा. So यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है. So that's why false. Next one, B equal to with number of elements C. B का भी 3 है, C का भी 3 है. So that's why it's true. So true. नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू इट सी. ए का 5 है, सी का 3 है, नॉट इक्वल टू, दैट्स वाई फॉल्स. नेक्स्ट, सम नंबर 3. यूज एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, सुपरसेट एंड इक्वल टू फिल द ब्लैंक्स. सो ये द फर्स्ट वन, 4-1, 2, 3, 4. 4 एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक सेट है. अब सेट के बीच में 4 एक एलिमेंट्स है. इसका मतलब दैट एलिमेंट बिलोंग from this set, belongs in this set. So that's why 4 belongs to this one. Next one, -5. यहाँ पर डैश है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पर -5 नहीं है, इसका मतलब -5 not belongs to in that set. Next one,
सेट 2 सबसेट यहाँ पर 2 3 4। ओके, नाउ यहाँ पर डैश होगा, डैश में सबसेट होगा। सबसेट क्यों लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट है 2 और यहाँ पर भी एक एलिमेंट 2, इसका मतलब दिस सेट लाई ऑन दिस वन। ओके, सो 2 सबसेट दिस वन। नेक्स्ट वन ए बी सी, यहाँ पर दूसरा सेट भी है बी ए सी, इसका मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट इक्वल टू विथ हर एक एलिमेंट ऑफ दिस वन। ओके, सो दैट्स वाई हियर इक्वल टू। नेक्स्ट वन ए बी सी एंड हियर ए बी बी ए सी। अब ए बी बी सी रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, सो इक्वलिटी होगा। नेक्स्ट नंबर 6 ए आई यू एंड हियर ए आई। ओके, ए आई यू, here a that means this one is the superset, it's called superset of this one. That means this one lie or this one contain by this one, so this one is the subset of this one, so that's why this one is the superset of this one. Okay, now last one, sum number 7. Mumbai equal to X such that X is the capital city of countries in Asia. Capital cities of countries in Asia, that's why not belongs to. Okay, now sum number 4. Examine whether the following statements are true or false. AB not subset of BCA. AB यहाँ पर belong करता है, that means AB is the subset of BCA. So first one is false. Number 2 1 2 3 subset of 1 2 1 3 and 5. यहाँ पर 2 नहीं है, बट 1 2 3 सबसेट, अगर सबसेट होता तो यहाँ पर एक 2 होता, सो दैट्स वाई फॉल्स। नंबर 3 सेट ए, दिस वन सेट एलिमेंट है ए, सबसेट ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर ए भी है तो दैट वन आर बिलोंग्स टू फ्रॉम दैट वन, सो इट्स सबसेट, सो इट्स ट्रू। नंबर 4 दिस वन बिलोंग्स टू ए बी सी, दैट वन दिस वन बिलोंग्स टू ए बी सी। अब इट्स अ सेट नॉट द एलिमेंट। ओके, that one a set not the element, so that's why it falls. Now number 5 AE subset X such that X is a vowel in the English alphabet. X is a vowel in the English alphabet, and here for A and E both are the vowel in the English alphabet, so that's why it's true. Number 6 X such that X is an even natural number less than 8. Second one X such that X is a natural number which divides by 36, which divide 36. अब natural number, even natural number less than 8, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 4 6। अब 2 4 6 तीनों को साथ ये अगर 36 डिवाइड करें, डिवाइड 36 divided by 2 is divisible, 36 divided by 4 also divisible, and 36 divided by 6 also divisible. So that means the first one is a subset of second one, so it's true. Sum number 5. State whether the each of the following statement are true or false. 2 subset of 1 2 3. Okay, so first one is false, as here 2 is the element not the set. Next 2 belongs to 1 2 3, also false. यहाँ पर 2 set है, ये सबसेट हो सकता है बट बिलोंग्स टू नहीं हो सकता है, यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए। थर्ड वन 5 बिलोंग्स टू 1 2 3, फॉल्स, यहाँ पर 5 नहीं है। नेक्स्ट वन 0 बिलोंग्स टू 5, नंबर 4 ऑल्सो फॉल्स। नंबर 5 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर देखिए 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3, 1 एक एलिमेंट है एंड 2 एक 2 3 दोनों मिला के एक सेट होगा और दूसरा एलिमेंट है, बट 1 2 यहाँ पर नहीं है, सो दैट इक्वल टू ऑल्सो फॉल्स। नंबर 6 5 सबसेट ऑफ दैट सेट, अब 5 एक एलिमेंट है, इसका मतलब सबसेट होगा, सो दैट्स ट्रू। नंबर 6 let A equal to 1 2 3 4 5, which of the following statements are not true and why? First one 3 4 subset of A, 3 4 subset of A, it's false. Next one 3 4 belongs to A, it's true. 3 4 subset again a set subset of A, of that one, the meaning of that one, that means 3 4 is a single element, so it's true. Okay, meaning of that one, that यहाँ पर 3 4 एक single element है, a single element subset of A, यहाँ पर single element है, so that's why it's true. Now next one number 4 1 2 5 subset of A, 1 2 and 5, okay, it's true.
1 to 5 बिलोंग्स ए, इट्स फॉल्स, एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं. नंबर 6, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 है बट 3 नहीं है, 3 4 एक अलग एलिमेंट है, सो सम नंबर 6 इज फॉल्स. 1 बिलोंग्स टू ए, ओके. सम नंबर 7, 1 बिलोंग्स टू ए, इट्स ट्रू, 1 एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए. सम नंबर 8, 1 सबसेट ए, इट्स फॉल्स. 5 बिलोंग्स ए, इट्स फॉल्स. 5 सबसेट है, सबसेट होगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, इट्स ट्रू. नाउ सेट 5 सबसेट ए, इट्स फॉल्स. सम नंबर 7, इफ xi इक्वल टू 1 2 3 dot 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 up to 10 and a equal to x such that x is a prime factor of 66. Now first you have to find out the prime factor of 66. 66 का प्राइम फैक्टर कौन होता है? सो प्राइम फैक्टर ऑफ 66 आर 2 3 and 11. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66 दैट इज 2 3 and 11. सो यहाँ पर देखिए 11 नहीं है, सो यहाँ पर जाई इज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, इसका मतलब 11 नहीं है. सो लिस्ट ऑफ सेट ए दैट इक्वल टू ओनली 2 and 3. लिस्ट ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 and 3, 11 नहीं लेना है. ऐसे यहाँ पर जाई इज द यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब जो भी नंबर लेना है इस सेट के अंदर से नंबर लेना है. अब यहाँ पर 1 से 10 तक है, इसका मतलब सिर्फ 2 और 3 ले सकते हैं, 11 नहीं ले सकते. सो लिस्ट द सेट ए दैट इज इन सेकंड ब्रैकेट 2 and 3. नाउ नंबर 8, write down all the subset of the following set. Write down all the subset of the following set. Now यहाँ पर set A सबसेट होगा this one and 5 both. 5 हर एक का सबसेट होता है, so this one and 5. नेक्स्ट वन A B, इसका सबसेट होगा 5. पहला होगा 5, दूसरा होगा AB, तीसरा होगा only A and चौथा only B. Okay, so you have to write down in this way. First one 5, second one AB like this way, then set A and then set B. चारों अलग अलग सेट. पहला वाला नल सेट, दूसरा सेट जो ए बी कंटेन करता है, तीसरा सेट जो सिर्फ ए को कंटेन करता है और चौथा वाला सिर्फ बी को. नाउ नंबर 3, इन नंबर 3 इट्स 5, सो एक ही एलिमेंट होगा 5. नेक्स्ट वन नंबर 4 5 and 1. नेक्स्ट वन नंबर 4 5 and 1. सबसेट क्या क्या होगा? 5 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 and 1 एक साथ, एंड फिर सिर्फ 5 आएगा, एक सेट की तरह. पहला वाला 5 एक एलिमेंट है, दूसरा वाला 5 एक सेट है. अगर सेकंड ब्रैकेट दे दिया तो ये सेट बन गया. नाउ इंपॉर्टेंट टिप्स हियर, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. हमेशा याद रखना 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. सेकंड टिप्स, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे यहाँ पर पहला वाला था ए बी, अब ए बी का एक सबसेट होगा 5 एंड दूसरा सबसेट होगा ए बी खुद. याद रखना 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेकेंड वन एनी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके, नाउ सम नंबर 9, राइट द पावर सेट ऑफ ए वेर ए इक्वल टू -1 0 2. पावर सेट. ओके, सो हियर ए इक्वल टू -1 0 2. अब पावर सेट का मतलब है हर एक एलिमेंट लेके अलग अलग से सेट बनाना है. फर्स्ट वन 5 होगा, सेकेंड वन ओनली -1, थर्ड वन ओनली 0, फोर्थ वन 2. तीनों हो गया. अब इसके बाद 1 और 0 लेके एक सेट होगा, फिर -1 एंड 2 लेके दूसरा सेट होगा, फिर 0 1 2 लेके एक सेट होगा, और लास्ट में तीनों को एक साथ मिला के तीसरा सेट होगा. सो पावर सेट बन गया, ये वाला पूरा एक पावर सेट बन गया जिसका एलिमेंट है फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन. दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट पावर सेट. ओके, इट्स अ वेरी इजी. पहले हर एक को अलग अलग लेके सेट बनाना है, एलिमेंट बनाना है, फिर हर एक को दोनों को मिला के फर्स्ट वन सेकेंड वन मिला के एक, फर्स्ट वन थर्ड वन मिला के दूसरा, और लास्ट में तीनों को एक साथ लिखना है. और 5 हमेशा लिखना. ओके, 5 हमेशा लिखना. नाउ सम नंबर 10. Okay, that is the last sum in this video. So if you like my video, please share this video and please press the bell icon if you get the notification. So here in sum number 10, write the number of proper subset of A where A equal to -3, -1, 0, 1 and 4. So A equal to -3, -1, 0, 1 and 4.
नाउ नंबर ऑफ प्रॉपर सब, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट. So here the number of elements are 1, 2, 3, 4, 5. That means here n equal to 5. Remember that n is the number of element of the given set. So number of proper subset formula 2 to the power n minus 1. So 2 to the power 5 minus 1, 32 minus 1, that equal to 32. Sorry, 31. So 31 is the final answer.